Hare Krishna. So what did you learn yesterday? Hare Krishna. Dhanat pranam. फिर क्या सीखा हमने, याद है आपको? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, yesterday one point was about the gopis' spontaneous love and devotional service for Krishna. That whatever love they have, it is like it is not a sex desire or something, and they have that lust which is defined as the more the service they do, they feel very happy about it. Yes. So we learned yesterday that the devotional service of gopis actually is impelled by purely love. There's no tinge of lust in their devotional service. So Prabhupada जी एक बहुत स्टोरी बताते हैं. कौन सा स्टोरी बताते हैं उसके लिए आपको पता है? एक बार कृष्ण को हेडेक हो गया था, है ना? कृष्ण को सिर दर्द हो रहा था. फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने नारद मुनि को कहा कि मेरे भक्तों का गोपिया ने अपने पैर का धूली लगाया उनकी माथे पे. अरे वाह. Yes, गीतांजलि माता, please tell story. कृष्ण ने ऐसी लीला की कि उन्होंने उनको गोपियों की महानता बतानी थी, तो उन्होंने ऐसा नारद मुनि को बोला कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है और इसका एक ही क्योर है कि कोई मेरे भक्तों की पदधूलि अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे उससे आराम होगा. तो नारद मुनि फिर सबके पास गए, वो द्वारका की महिषियों के पास भी गए, बाकी सभी डिवोटीज के पास भी गए और उन्होंने सबसे बोला कि कृष्ण को हेडेक हो रहा है तो आप अपनी पदधूलि दे दीजिए. लेकिन सबने कहा नहीं, आप क्या बोल रहे हो, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम नरक में जाएंगे. तो सबने मना कर दिया और फाइनली जब वो इनके पास गए, गोपियों के पास गए, तो वैसे ही वो बहुत विरह में थी और जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने बोला कि जितना है चाहिए उतना लेके जाइए, क्योंकि अगर हम नरक में जाके भी सफर करेंगे तो भी हमें चलेगा, बट कृष्ण का हेडेक ठीक होना चाहिए. और फिर इसीलिए फिर नारद मुनि समझ गए कि what is the difference between the gopis and the other devotees. Right, thank you. तो ये बहुत सुंदर स्टोरी है एक्चुअली, जिसमें हमें पता चलता है कि कृष्ण को एक क्षण से भी सिरदर्द से छुटकारा देने के लिए गोपियां करोड़ों साल तक नरक में जाने के लिए तैयार है. ये उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति. ऐसा नहीं है कि तो गोपियां फिर इस प्रकार के, हमने ये भी पहले डिस्कस किया एक्चुअली. Then why it appears like a mundane boy and girl, and how it is not, right? Why do they act? Sometimes these conjugal pastimes are there and people think it's a normal ordinary mundane pastimes, right? So how we understand this pastime? बताइए. प्रभु जी, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ. मैं कह रहा था कि इसे हम कैसे समझा सकते हैं, वो क्या है फिर, why such pastimes are described in scriptures? राधा से भगवान की भक्ति, मतलब चरण कमलों की जो सुधा है, धाम है, उसको प्राप्त किया जा सकता है. एक्चुअली हम कल ये डिस्कस भगवान की सेवा सिर्फ भगवान के हैप्पीनेस के लिए की जानी चाहिए, उनके प्लेजर के लिए. Krishna in his eternal form, actually he is Adyam Purana Purusham Navayavvanam. He is eternal Purusha, Adyam Purana Purusham, but Navayavvanam. He is 16 years young boy, right? So in a what format you can render best service? So in a normal ordinary way also it is seen actually among all the different relationships. The wife is able to serve the husband in many ways and most intimate ways. That relationship. So gopis, they think that if Krishna is a young boy of 16 years old, what he wants actually, he wants conjugal happiness. That's what a young boy wants actually. That's what their understanding is, right? And this is true, right? So they think that, so this is the way we would like to serve Krishna. For young boy, what service we can do? So they appear in the form of lover just to please Krishna. Understand, this is the highest happiness they can give him by being his girlfriends, Krishna's girlfriends, coward girls. So that's what they think. And Krishna also, what Krishna thinks, any devotee approaches me with any desire to serve, I must accept that service.
Whatever way you approach Krishna, if you want to become mother of Krishna, Krishna will become your child. कृष्ण को आप अपने पुत्र के समान मानना चाहते हो, कृष्ण आपके पुत्र बन जाएंगे, आप उनके माता बन जाएंगे। कृष्ण के आप सखा बनना चाहते हो, कृष्ण आपका सखा बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से गोपियां कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदान करने के लिए कृष्ण की प्रेयसी बनना चाहती, तो कृष्ण भी उनके प्रियकर बन जाते हैं और कृष्ण उनका सेवा स्वीकार करते। तो इष्ट में कृष्ण का भी कोई भौतिक काम विकार नहीं है। कृष्ण जस्ट प्रेम का आस्वादन करते, जो भी भक्त प्रेम अर्पण करना चाहते हैं उसका प्रेम का स्वीकार से कृष्ण करते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, राइट। इफ कृष्ण यू वांट टू सर्व कृष्ण एज ए चाइल्ड, बट लेट्स से आपके घर में लड्डू गोपाल डीटी है और आप भगवान को खाना खिलाने लेके जाते हो, नो लाइक यू भोग लगाते हो, भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद आत्माराम हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं सब करने का, और कोई सेवा स्वीकार नहीं करता, आपको कैसे लगेगा? अरे कृष्ण मेरा सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसीलिए श्री कृष्ण सारा सेवा स्वीकार करते हैं, जो भी आप अप्रोच करते हो, बिकॉज दैट्स द वे डिवोटी डेवलप्स अ रिलेशनशिप विद कृष्ण, एंड दैट्स द वे ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर कृष्ण। जो सेवा करते हैं उसके द्वारा अपने हृदय का प्रेम कृष्ण को जता सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण उस सेवा का स्वीकार करते हैं। सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस पास्ट टाइम इज एक्चुअली in this format they think gopis think, or they understand, or it is a truth also, the best service can be done to Krishna, because we understand madhurya rasa also includes vatsalya rasa, it also includes sakhya rasa, it also includes dasya rasa, it also includes shanta rasa. So all the rasas are included many folds in a madhurya rasa. So happiness contained in all these rasas actually can be given by the gopis to Krishna. So that's why the cowherd damsels actually they approach Krishna with a conjugal desire, to please him, not for their pleasure. And Krishna also accepts their service to please them, and he exactly acts as per them. Krishna will not act like he's indifferent. Of course, sometimes he may act just to create flavor in that. प्रभु जी एक प्रश्न था यहाँ, जैसे मतलब कल मैं नहीं थी क्लास में, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुना, तो वो श्रुतियों का उदाहरण दिया गया था ना, जिन्होंने गोपियों को फॉलो करके वो भी मतलब उनका स्वरूप प्राप्त कर लिया। जैसे हम जैसे साधक है, वो उनका स्थिति क्या है उसमें, या उनका पोजीशन? वो आएगा अभी। कौन है पात्र रागनों का साधना भक्ति करने के लिए? पात्र कौन है आज वो डिस्कस करेंगे। कौन कह सकता है कि मैं रागात्मिक भक्तों को फॉलो करूं? बिकॉज द डेफिनेशन है कि रागनों का साधना भक्त है, they have this implicit attraction in their heart for eternal residents of Vrindavan. They want to follow their footsteps. They are inspired by those personalities. तो कोई भी हो सकता है क्या? कोई फॉलो कर सकता है क्या? उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? So today we'll discuss that. But it's important to understand. Otherwise, there is a lot of misconception regarding this pastime. People may think that Krishna is a lusty or the gopis are lusty. Even foreigners they ask this question: कैसे आपके भगवान है कि he's dancing with so many ladies? They're not married to him actually. People have so many misconceptions. प्रभु जी श्रुति जो है वो स्त्री रूपा है ना यहाँ पे? Yes, they accept स्त्री रूपा है। बेसिकली कोई भी रूप में रहे, अंत में तो उनको जो ब्रज में रूप प्राप्त होता है गोपी का रूप प्राप्त होता है, श्रुतिचारी गोपियां कहते हैं। So they accept that role. So what role one has before, what gender, material gender is not important actually. रागों का भक्ति साधना जैसे स्त्री पुरुष को भी लिंग में किया जा सकता है। उसका ऐसे नहीं कि स्त्रियां यही गोपी बन सकती है, पुरुष कैसे, ऐसा नहीं। मुझे सब तो स्त्री रूपा ही है ना, सब साधक तत्व से देखा गया तो सब पुरुष और प्रकृति है। भगवान एक पुरुष है और बाकी सब प्रकृति है। तो हम ये भी कल डिस्कस कर रहे थे, कोई ब्रह्म ज्योति में चला जाता है तो फिर वो बहुत लंबे समय के लिए वहां पे फंस जाता है। वो इसलिए आचार्य किसी भी हालत में, इसीलिए सेकंड बेस्ट कहा था कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस भौतिक जीवन में मुक्ति का। किसी को बताया गया है कि बस आप मुक्त हो जाओ, आपको भौतिक संसार में वापिस आना नहीं पड़ेगा और शाश्वत सुख का आप अनुभव करोगे। बोले अच्छा है, कोई रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सारे रिलेशनशिप। सो अनलेस देयर इज अ भक्ति which arouses in heart actually, advanced bhakti, we may not be able to totally give up the desire for liberation. That's why हमारे आचार्य बार-बार उसको खंडन करते हैं और many times actually they criticize the path of mukti, उसकी भर्त्सना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जीवात्मा में ये अट्रैक्शन है मुक्ति के प्रति।
कि मुझे भी मुक्ति चाहिए, सब जंजाल से बाहर आना है। इसलिए सेवा में भी इतना रुचि नहीं है ना, भक्ति में आए हम बट कुल रहना चाहते हैं और ज्यादा नहीं करना चाहते। क्यों? सेवा में एंग्जाइटी है। सेवा मीन्स एक्सटेंडिंग वन सेल्फ, बट वी वांट टू बी जस्ट पीसफुल। क्यों कर रहे हैं? अब पीसफुल हो गए क्या प्रभु जी आप? आपको भी आप आध्यात्मिक जीवन में क्यों आया? किसी को पूछेगा तो मुझे पीस चाहिए, बहुत ताप हुआ बहुत संसार में। परंतु आध्यात्मिक जीवन ये कोई सिर्फ पीस नहीं है, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के ताप सहन करना, उठाना और सेवा करना, ये भक्ति है। और इसमें हृदय में हालांकि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इसमें हृदय में विशेष संतुष्टि का अनुभव होता है। ये भक्ति है। ये हमने देखा था कि इसीलिए बार बार खंडन करते हैं ये ब्राह्मण का या मायावाद का, इम्पर्सनलिज्म का। श्रील प्रभुपाद जी प्रणोति स्वीकार की कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कार्य। तो ये बहुत लोग को डाउट रहता है, तो ये समझना चाहिए कि गोपियां भी स्वयं के सुख के लिए नहीं कर रही, तो कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। कृष्ण भी स्वयं के सुख के लिए नहीं कर रहे, तो गोपियों को बस आदान प्रदान करने के लिए इस भाव में वो उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरों को आनंद देने के लिए आत्मेंद्र प्रीतिवांचा तार बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांचा धरे प्रेम नाम। खुद के इंद्रियों की इच्छा, इंद्रियों को सुख देने की इच्छा रखना, इसे काम वासना कहते हैं। और तो कृष्ण के इंद्रियों को तृप्ति देने की इच्छा रखना, इसे प्रेम कहते हैं। तो फिर गोपियों का प्रेम है, तो उसे काम क्यों कहा गया? ये डिस्कस किया कल हमने। व्हाई देन इट डिस्कस्ड एज काम? Did we discuss this point yesterday? Because जैसे हम ये गाते हैं ना, premaiva gopa-rämäëäà agamat prathäm. So kama-rupa bhakti of the gopis, gopa-rämäëäà kama has become famous simply as a prema. Prema iti prathäm agamat. प्रेम गोप-rämäëäà काम iti agamat prathäm. गोपियों को प्रेम को काम भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वो प्रेमी कहते थे। राग का अर्थ भी प्रेम होता है, तो रिडंडेंसी हो जाएगा। सो काम एंड काम इज समथिंग वेरी आइडेंटिफाइबल, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्चुअली वन कैन आइडेंटिफाई. So externally appears like a kama, but actually it is a prema. That's why it is called as kamanuga bhakti. Kamanuga, raganuga, sadhana bhakti. या काम या संबंधमयी या काममयी रागानुगा भक्ति ऐसे कहा जाता है. Because that strong force, काम and काम रूपा रागात्मिका भक्ति is actually प्रेम. भक्ति रसामृत सिंधु माता है इति उद्धवादयो इति उद्धवादयोपि एतम वांछति भगवत प्रिया. And because it is a form of exalted prema, persons such as Uddhava dayopi, dear to the Lord, Bhagavad Priya, desire the aspect of etad vanchiti. गोपियों जैसा काम वो विकसित करना चाहते हैं, इस प्रकार का प्रेम वो चाहते, उद्धव भी वो चाहते, सुखदेव गोस्वामी चाहते. सन्यासी गोपियों को कहे कि सम्यकाच उपासना व्रजवधुर्वार्गेण या कल्पिता. Best worship of Krishna is performed by the Braj Gopikas. प्रभु जी समझ नहीं आया, आप मतलब काम रूप, क्योंकि वो कॉन्जुगल लव में है इसीलिए, क्योंकि या फिर बिकॉज उसका डिग्री बहुत हाईएस्ट है इसीलिए, क्योंकि आपने कहा उद्धव भी वो ऐसा स्वीकार करना चाहते हैं. राइट या एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ये है कि जिस प्रेम को काम क्यों कहा गया है, प्रेम कहना चाहिए तो काम क्यों कहा है. काम तो हम लस्ट समझते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से उसका अर्थ तो लस्ट होता है. राइट, तो यहाँ पे काम रूपा रागात्मिका भक्ति क्यों कहा गया. So it appears externally as if it is a lust, but actually it is love. That's why it is used as calm, because that force is as strong as calm. Calm force is very strong. Kamesha, Krodesha, Rajoguna Samudra, Mahashuna Mahapadma, Vidyanime Vairina. But it's very, very strong force actually. That person acts even against his desire when lust is there. Arjuna says actually, Anichanapi Varshneya, Baladi Sunvijita. What is that force actually? Atakyena prayuktena papam charati purusha. What is that force which impels a person to act against one desire? ऐसा कौन सा ये शक्ति है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके कार्य करता है? इसे काम कहा गया. काम है प्रवेश. So it's very, very strong force. It appears a strong attraction actually, but it is a prema.
इसको 10:47:58 खोलेंगे। 10:47:58। एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावः वाञ्छति यत् भवभ्यो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथारथस्य। इसका अर्थ है एत भुवि, संसार में जितने लोग उपस्थित हैं, गोपवध्व एव, दिस कावर्ड वुमन अलोन, सारे संसार में जितने उपस्थित लोग हैं उसमें जो गोपवधु है, गोपियां, उन्होंने ही परम तनुभृतो अपने जीवन का परम कल्याण प्राप्त कर चुके हैं। क्यों? रूढ़ भाव, कृष्ण के प्रति उनका रूढ़ भाव, रूढ़ यानी they have got perfection of their unalloyed love for Krishna। स्थापित उनका प्रेम जागृत हुआ है कृष्ण के प्रति। निखिलात्मनि गोविंदा, फॉर लॉर्ड गोविंदा, रूढ़ भाव निखिलात्मनि गोविंदा, गोविंद के प्रति उन्होंने अपना प्रेम को जागृत किया है। इसलिए जो गोपियां हैं वो सारे संसार में जितने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। यद वांछति, their love is even hankered by yad vanchati bhavabhya, those who fear material existence, munaya, by great sages, and vayamch, by ourselves as well, अनंत कथा रहस्य, तो जिन्होंने भगवान की अलग अलग लीलाओं को सुना है। What is the use of taking birth as a high class brahmana or even as a Lord Brahma himself? किम ब्रह्म जन्म, क्या फायदा है? So, ये गोपियों का भाव के प्रेम की अपेक्षा इस प्रकार से हम देखते कि सारे शास्त्रों में उनके प्रेम का गुणगान किया गया है। उद्धव कहते हैं इस प्रकार का प्रेम हम भी उसका इच्छा रखते हैं। हमें भी उस प्रकार का प्रेम चाहिए, गोपी वाला प्रेम। अब ये तो उसमें कोई काम का लवलेश नहीं है। जैसे आप ये गोपी गीत का लास्ट श्लोक खोलोगे, 31st चैप्टर द लास्ट श्लोक, 19th श्लोक, क्या श्लोक है? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु प्रीताशनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तत् यततेन किं सिद्ध दीर्भवदायुषाम्नः। इसका अर्थ पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? पढ़िए। Oh dearly beloved, your lotus feet are so soft that we place them gently on our breast, fearing that your feet will be hurt. Our life rests only in you. Our minds, therefore, are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles as you roam about on the forest path. Thank you, friends. If somebody reads only one part, that they want to keep Krishna's feet on their breast, so somebody may think that they're having this lusty desire, actually. Right? But if you read carefully, what we understand here is they are not worried about themselves. Actually, what they want to give is they want to give relief to Krishna's lotus feet. Krishna might be hurt actually by traversing in the forest paths because there are so many pebbles and thorns. इतने सारे कांटे होते हैं, इतने सारे नुकीले पत्थर होते हैं, तो कृष्ण के चरणों को क्षति पहुंचता होगा। तो उन कृष्ण के चरण कमलों को आराम देने के लिए कृष्ण के चरण कमलों अपने वक्षस्थल पर रखना चाहते हैं। तो उनमें वैयक्तिक स्वार्थ का एक लवलेश भी नहीं है। उनको कृष्ण के चरण कमलों के सुख की बस एक इच्छा है, उसकी चिंता है। इससे पता चलता है कि गोपियों का जो प्रेम है अत्यंत विशुद्ध है, इसमें भौतिकता का लवलेश भी नहीं है। कमेंट्री में लिखा है कि it should be understood that he actually did not desire the gopis particular type of prema, because such a desire would suggest that he is forcing conform with the goal of kama rupa bhakti on desires of liberation, the liberated and the devotees. तो ऐसे नहीं कि no, he is not forcing the conformity of the goal of kama rupa bhakti on the desires of liberation, liberated devotees. So, but he's just glorifying that prema.
क्योंकि सबका अलग अलग इच्छा होता है, वैसे नहीं कि सबको काम रूप भक्ति प्रैक्टिस करना फोर्स कर सकते, वैसे नहीं. People might have different desires, but among all these people actually the highest love is attained by the gopis. आगे लिखा है कि thus there would be no existence of other स्थायी भाव such as साख्य और दास्य. If everybody just gets काम रूप भक्ति, तो फिर बाकी फ्लेवर ही नहीं रहेगा. But what Uddhava is desiring is, Uddhava desires the intensity of their prema, but not their kama rupa bhava, which causes the intensity. So intensity is very strong in a kama rupa bhava. So Uddhava wants to know his own rasa with Krishna, but with the intensity of Gopi's love for Krishna. Uddhava भी जब म्यूट करेंगे, उद्धव जब गोपियों का प्रेम देखे ब्रज में जाके, उस प्रेम का इतना प्रभाव था कि उद्धव को लगा कि मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, एक जुगनू के समान है. गोपियों का प्रेम प्रखर सूर्य के समान गोपियों का प्रेम है, मेरा प्रेम तो उनके सामने जुगनू के समान. तो उद्धव अपना जो रस है वो चेंज नहीं करना चाहते, जिस रस में कृष्ण के साथ संबंध रखते हो, परंतु उस रस में गोपियों के प्रेम का इंटेंसिटी लाना चाहते हैं. Why don't I feel similar love for Krishna, being a friend or being his closest confidant? So he's feeling like that. So he's desiring similar intensity. That's why it's Kama Rupa Bhakti. The intensity is very strong. तो खोलेंगे आप एक मिनट. Okay, I'll read from here actually. The author of Çré Caitanya-caritämåta, Kaviräja Kåñëadäsa, has explained the distinction between lusty desire and service attitude in this statement. Lusty desire refers to desire to gratify one's personal senses. Transcendental desire refers to desire for serving the senses of the Lord. Atmendra pritivancha dhare kama. Krishnendra pritivancha dhare. No, Atmendra pritivancha tare bali kam. Krishnendra pritivancha dhare bali. In the material world, there is no such thing as lovers wanting to tease the senses of his beloved. भौतिक संसार में संभव नहीं है, इसमें स्वार्थ होता ही. तो आध्यात्मिक जगत में बस गोपी और कृष्ण के बीच में पाया जाता है. Actually, in the material world, everyone wants to mainly gratify his own personal senses. आदत लगा है ना, तो suddenly कैसे change होगा? Like in every relationship, in every dealing, in every interaction, we want to gratify our own desires and our senses. So that's why in the material world, generally, it is not love, it's lust. Actually, in the material world, everyone wants to mainly gratify his own personal senses. The gopis, however, wanted nothing at all but to gratify the sense of the Lord. There is no instance of this in the material world. Therefore, the gopis' ecstatic love for Krishna is sometimes described by scholars as being like the lusty desire of the material world. But actually, this should not be taken as a literal fact. It is simply a way of trying to understand the transcendental situation. कभी-कभी कहा जाएगा काम, परंतु काम नहीं है, प्रेमी है. Great devotees up to the standard of Uddhava are very dear friends of the Lord, and they desire to follow in the footsteps of gopis. So gopis' love for Krishna is certainly not material lusty desire. Otherwise, how could Uddhava aspire to follow in their footsteps? तो भौतिक भोग लेने की वृत्ति रहती थी, काम भावना रहती, तो उद्धव उनके चरण चिन्हों का पालन क्यों करते थे? Another instance is Lord Chaitanya himself. After accepting sannyas order of life, he was very, very strict about avoiding association with women. Still, he taught that there is no better method of worshipping Krishna than that considered by the gopis. So Chaitanya Mahaprabhu was strict sannyasi actually. दूर से मात्र लोग दंडवत करते हैं, but उनके हृदय में सदैव गोपियों का चिंतन कर रहे, उनके बारे में सुन रहे. इतना गोपियों का प्रेम का महत्व है, इतना प्रेम का विशुद्धता है गोपियों के प्रेम में. Thus, the gopis' method of worshipping Lord, as if impelled by lusty desire, was praised very highly even by Sri Chaitanya Mahaprabhu. This very fact means that although attraction of the gopis for Krishna appears to be lusty, it is not at all or not in the least bit material. Chaitanya Mahaprabhu तनिक मात्र भी काम विकार वो सहन नहीं करते थे, इस प्रकार का विचार भी नहीं सहन करे, तो भी इस प्रकार के गोपियों का प्रेम का सराहना करें. क्यों? क्योंकि गोपियों का जो है वो काम भावना नहीं, परंतु वो प्रेम मात्र ही है. Unless one is fully situated in the transcendental position, the relationship of the gopis with Krishna is very difficult to understand. इतना आसान नहीं समझ पाना. But because it appears to be just like ordinary dealings of young boys and girls, it is sometimes misinterpreted to be like ordinary sex of this material world. Unfortunately, a person who cannot understand the transcendental nature of the loving affairs of the gopis and Krishna take it for granted that Krishna's loving affairs with the gopis are mundane transactions,
and therefore they sometimes indulge in the painting licentious pictures in some modernistic style. इसे लोगों को लगता है कि उनके जैसे कृष्ण गोपियों के बीच में संबंध, इसलिए कृष्ण की गोपियों की इस प्रकार से पेंटिंग्स बनाते हैं और जिसमें डायरेक्ट दिखाया है ना, like where conjugal dealings are shown, right? But it is not actually to glorify Krishna, but it just to satisfy their lust desires. तो इस प्रकार से गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति पूर्ण तरह से विशुद्ध हमें देखा। परंतु जो कुब्जा का भाव था कृष्ण के प्रति आगे दिया एक्चुअली, काम प्राय रति किंतु कुब्जायाम एव सम्मता। बोलेंगे प्रभु आप ये, काम प्राय रति किंतु कुब्जयाम एव सम्मता। हमने ऊपर का पढ़ा भी है, काम प्राय रति किंतु कुब्जायाम एव सम्मता। तो ऐसे कहा गया कि किंतु सम्मता, the intelligent people actually they agree. What they agree? The attraction to Krishna seen in Kubjayam Rati, Kam Prayeva, is essentially due to Kama, not because of Prema, but it's mainly due to Kama. पढ़ेंगे इसका Hare Krishna. पढ़िए। On the other hand, the lusty desire of Kubja is described by learned scholars as being almost lusty desire. Kubja was a hunchbacked woman who also wanted Krishna with a great ecstatic love. But her desire for Krishna was almost mundane, so her love cannot be compared to the love of the gopis. Her loving affection for Krishna is called kama praya, or almost like the gopis' love for Krishna. Hare Krishna. ऐसा लगता है उनको गोपियों के प्रेम के जैसा है, परंतु काम प्राय dissimilar, not actually, it is lust mostly. आगे खोलेंगे तो okay, we'll read now. We can Baji. Purport में लिखा, you can stop sharing too. Kubja had a prominence of kama is evident in her not showing the actions of the pure prema of the gopis. The pure prema is illustrated in the following. Actually, 10. Okay, we discuss that. Up 10:42-9 खोल सकते हैं. 10:42-9. प्रभु जी, पर जब कृष्ण मिलने आए थे कुब्जा से, then she had transformation of heart, इसीलिए फिर उन्होंने डिलीवर किया ना कुब्जा को. She rendered some service to Krishna actually. That's why Krishna bestowed her with a beautiful body. Krishna asked, she was attracted by him, so she offered, whatever chandan paste was there, वो सब कृष्ण को लगाया उन्होंने, बलराम जी को लगाया, right? So Krishna asked, and then she was attracted by Krishna, and Krishna, because she rendered service to Krishna, Krishna is very grateful. तो उनको तुरंत कुब्जा को सीधा बना दिया उन्होंने, कुब्जा वापस सुंदर हो गई. और अगर सिर्फ सर्विस नहीं होती, then फिर नहीं होता. नहीं कंसा के लिए चंदन, हाँ वो कंस के लिए चंदन था और कंस को लेके जा रहे थे, परंतु तो भी उन्होंने वो बिना डरे हुए कृष्ण को लगाया, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न है उनके सेवा से और इसके लिए उन्हें उनको रूपवती बना दिया. She became very beautiful, but because she got beautiful, she felt like she wanted to enjoy Krishna, and she invited Krishna. अभी यहाँ पे भी इस श्लोक में हम देखेंगे. Prabhuji, did she think of enjoying Krishna, or she thought that I should give some pleasure to Krishna? लिखा है यहाँ पे भी. ततो रूप गुणो उदारी संपन्ना प्राह केशवम उत्तरायंतम आकृष्य स्मयंती जातरुच्चया. She was now endowed with beauty. Tato rupa gunadharya sampanna. She was endowed with rupa guna audharya sampanna, generosity, character, beauty. So she began to feel lusty desires for Lord Krishna. Keshavam jat ruchya. कृष्ण के प्रति उनके हृदय में काम वासना उत्पन्न हुई. तो उन्होंने क्या किया फिर? उत्तरीयांतम आकृष्य स्मयंती. She smiled, स्मयंती, और कृष्ण को उत्तरी को खींचने लग गई, taking hold of end of his upper cloth.
उत्तरीयांतमा. So Bhagavatam describes that she was feeling lusty desires for the Lord actually. Keshavantam jataruchya. But she had rati for a small extent. Commentary में लिखा गया, however, she is said to have rati to a small degree because the object of her attraction was Krishna. कृष्ण थे तो कृष्ण के कारण थोड़ा शुद्धिकरण में और थोड़ा तो रति था उनकी, इसलिए काम प्राय कहा गया. ये श्लोक कौन सा है? भागवतम में आता है माता जी 10:42-9. 10 canto 42 second chapter 9th shloka. तो हमने काम रूपा रागात्मिका भक्ति देखा. अभी संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति. क्या है संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति का डेफिनेशन? खोलेंगे. संबंध रूपा गोविंदे पितृवदी अभिमानिता. प्रभु जी मैं इंटरप्ट फॉर 1 minute. या प्रभु जी आप जो भी है ना भागवतम के जो रेफरेंसेस दे रहे हैं ना श्लोका के, वो जो श्लोका नंबर है वो हमको आगे यूज होगा क्या? हमको मतलब लिख के रखना चाहिए क्या वो श्लोका के रेफरेंसेस? आपको पढ़ना है डिटेल में तो होगा ना, मींस आपको रेफरेंस बताया तो उसका कोई पॉइंट है, राइट? आपको एक्सप्लेन करना है स्पेसिफिकली. अभी एग्जाम तो नहीं इतना, बट those who are going to study deeply, those who want to refer again, those who reach, so it'll be good, to have these references. आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा. जी जी. और लिख के रखिए एटलीस्ट ना, कोई ज्यादा टाइम नहीं. जी जी. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण. Hari Bol. So we are on the chapter number 60. We are getting closer to the 19 chapters of the total. So now we are on the chapter number 60. Spontaneous devotion further described. संबंध रूपा गोविंदे पितृवादी अभिमानिता. संबंध रूपा गोविंदे पितृवादी अभिमानिता. अत्रोपलक्षणान्तया वृष्णीनां वल्लभमता यदस्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता. ऐसे कहा गया. संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति. संबंध रूपा कौन सी भक्ति? गोविंदे पितृवादी अभिमानिता. तो उसमें अभिमानिता, भगवान में बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, अभिनिवेश होता है. कहाँ से आता है वो? आइडेंटिफाइंग कृष्णा एज पितृत्व आदि. आदि यानी पितृ बने, कृष्ण के माता पिता बनना या फ्रेंड बनना या उनका सेवक बनना. पितृत्व और आदि. आइडेंटिफाइंग oneself as parent, friend, servant of Govinda. So this refers to bhakti of the cowherd people, which is indicated by the word sambandhat कृष्णया. संबंधा दृश्य था ना कि उनसे उनका उद्धार हुआ. अत्र उपलक्षणतया वृष्णिना वल्लभमता. So they have this connection with Krishna. This is because their other relationships in Vraja also have predominance of intense affection. Yada esham rage pradhanata. So very strong connection or attraction towards Krishna is seen in all the relationships. Isha jnana shunyatvad, caused by lack of awareness of Krishna as God. So the predominance of intense affection for Krishna because they forget that Krishna is God. Isha jnana shunyatvad. भगवान के प्रति वो भगवान है, ज्ञान वो भूल जाते, इसीलिए भगवान के प्रति उनका अत्यंत इंटेंस अफेक्शन, उनका बहुत ही विशेष उनका प्रेम होता है भगवान के प्रति. Intimate love for Krishna. Okay, we'll read a little more here. We'll read. Prabhuji, can I? Read. Relationship. In the attitude of the denizens of Vrindavan, such as Nanda Maharaj and Mother Yashoda, is to be found the ideal transcendental concept of being the father and mother of Krishna, the original personality of Godhead. Factually, no one can become the father or mother of Krishna, but a devotee's possession of such transcendental feelings is called love of Krishna in a parental relationship. The Vrishnis, Krishna's relatives at Dwarka, also felt like that. So spontaneous love of Krishna in the parental relationship is found both among those denizens of Dwarka who belong to the dynasty of Vrishni and among the inhabitants of Vrindavan. Hare Krishna. Nobody can become father and mother of God because God is
So sarva karana karanam. He is the reason behind all the reasons actually. Who can come before the Lord? But Krishna, out of great affection actually, or out of intense desire of his pure devotees to accept him as a child, Krishna becomes their child and Krishna accepts them as his parents. Krishna उनका अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते, क्योंकि उनका तीव्र इच्छा होता है कि भगवान को उस भाव में वो भगवान की सेवा करें. So that is found in the inhabitants of Braja. Okay. आगे का पढ़ेंगे. काम संबंध रूपे ते प्रेम मात्रा स्वरूप के नित्य सिद्धाश्रय तया नात्र सम्यक विचारिते. तो पढ़ेंगे क्या अर्थ है इसका? वर्ड बाय वर्ड पढ़ता फिर आप पढ़िए, ऐसे करते पहले. काम संबंध प्रेम मात्र स्वरूप के, कि प्रेम से ये दो प्रकार का भक्ति उत्पन्न होता है, काम रूप और संबंध रूप भक्ति. एंड दैट भक्ति शेल्टर्ड विथ हुम नित्य सिद्धाश्रयता, नित्य सिद्धाश्रयतया, नित्य सिद्ध भक्तों का आश्रय लेती है. काम रूपा भक्ति है वो आश्रय लेती है राधा रानी, ललिता, विशाखा, मंजरी, उनका आश्रय लेती है. और संबंधमयी भगवान की भक्ति है वो आश्रय लेते नंद महाराज, यशोदा, सुबल, मधुमंगल, रक्तक. तो ऐसे अलग अलग भक्तों का आश्रय लेती भक्ति. अत्र न सम्यक विचित्र थे. यहाँ पे इतना डिटेल में उस सेक्शन में डिस्कस किया नहीं गया है उसका बारे. रागात्मिकया द्वैविध्यात् विदा रागानुगा च सा कामानुगा च संबंधानुगा चेति निगद्यते. तो दो प्रकार के रागानुगा भक्ति होती है, रागात्मिका भक्ति सारी. फ्रॉम द दीज टू टाइप्स ऑफ रागात्मिका भक्ति, सिद्ध भक्ति, द्वैविध्यात् रागात्मिकया, टू टाइप्स ऑफ रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति called कामानुगा and संबंधानुगा भक्ति are derived. द्विधा रागानुगा च सा कामानुगा च संबंधानुगा चेति निगद्यते. रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है. तो उस दो प्रकार के भक्तों के अनुसार दो प्रकार की रागानुगा भक्ति भी होती है, कामानुगा भक्ति और संबंधानुगा भक्ति. ओके ओके, नाउ रीड. Yes, sir. Hare Krishna, please. Spontaneous love of Krishna as exhibited by the Vrishnis and the denizens of Vrindavan is eternally existing in them. In that stage of devotional service where regulative principles are followed, there is no necessity of discussing this love, for it must develop of itself at a more advanced stage. Should I read further to this? आगे पढ़ो. Yeah, so this is not discussed because at right time it will automatically, anyways, it will develop, right? So Prabhupada writes here, not so much elaboration is needed here. तो प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, इसमें क्या कहा है? अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, मतलब ये इसके बारे में बताया, वृष्णिस के बारे में. तो ये सब गोलोक में ही रहते हैं ना ये सब? यस, गोलोक में वृष्णि दो प्रकार के वृष्णि है. कुछ लोग द्वारका में भी रहते हैं, कुछ लोग गोलोक वृंदावन में रहते हैं. परंतु यहाँ पे गोलोक वृंदावन या वृंदावन पार्ट में जो रहते हैं उनका वर्णन है, द्वारका वालों का नहीं वर्णन. और प्रभु जी, और एक प्रश्न था. नरसिंह मेहता जो गुजरात के संत हुए ना, वो भी हमेशा गोपी भाव में उनके कुछ लीलाएं है जो गोपी भाव में वो वहां पे उपस्थित होते थे. वहां पे गोपियों का जो रास लीला चल रहा है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे. तो उनका भाव ये है ना, ऐसा ही है ना? रागात्मिका एक बार देखना पड़ेगा माता जी. आई कांट से एग्जैक्टली बिकॉज बहुत डीप में उनके बारे में पढ़ा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता. प्रभु जी वृष्णि किसको बोलते हैं प्रभु जी? Those are followers of, there is a king Vrishni actually appeared, so his followers are called as Vrishnis. कृष्ण की ड्रीम है. ओके, अब एक श्लोक पढ़ेंगे हम, फिर क्लोज करते हैं.
रागात्मिकया निश्चाये ब्रजवासी जनादया तेषां भावा पतये लब्धो भवेत् अत्राधिकारवान्। ये भावा आपते लुब्धा, जो इस प्रकार का भाव प्राप्त करने के लिए, ब्रजवासियों जैसे भाव प्राप्त करने के लिए अत्यंत लुब्ध रहता है, यानी ग्रीडी, लोभी रहता है। ब्रजवासी जनादया, ब्रजवासी जनादया, ब्रजवासी जो है उनके जैसे भाव प्राप्त करने के लिए जो बहुत लोभी होता है। रागात्मिका एक निष्ठा है, जो ब्रजवासी भक्त जो रागात्मिका भक्ति में स्थित है, firmly fixed in रागात्मिका भक्ति, one who is inspired by such eternal devotees of the Lord in Braja, he is qualified, तत्र अधिकारवान भवेत, रागनों का भक्ति के लिए पात्र है, ऐसे कहा गया है। अभी पात्र का बहुत डिटेल्स है, जो माधुर्य कादम्बनी, रागवर्त में चंद्रिका, वैष्णव ठाकुर का किताब है दोनों भी। तो ऐसे अलग अलग किताबों में उसका और वर्णन किया है रागनों का भक्ति। तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे 3-4 दिन एक्चुअली कि क्या पात्र था रागनों का भक्ति का। यहाँ तो लिखा गया है बस ये ग्रीडी क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद में, परंतु जो गोस्वामी पाद और श्री विश्वनाथ ठाकुर अपने कमेंट्रीज में और अलग अलग किताबों में इसको बहुत इलैबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ग्रीड है ये मिथ्या जो लोभ है किसमें है और सत्य जो है वास्तविक लोभ किसमें है, उसका पात्रता क्या है, ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया अलग अलग ग्रंथों में। तो हम आगे आई थिंक इस हफ्ते में डिस्कस करेंगे कि रागानुगा साधना भक्ति के लिए पात्र कौन, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? रागवर्त में चंद्रिका, माधुर्य कादम्बनी, there are many books actually. प्रश्न है किसी का? This is a very important subject matter. I think it was also less because of the festival. So we'll continue and there we discuss. Time is also over. कोई प्रश्न किसी का? Quickly. Okay. So we'll chant 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, थोड़ी Ram, Hare Ram, बोलो कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। Hare Krishna, Bhajan. Thank you so much.